John Dry is the next poet to be discussed in today's lecture. He was born in 1699 and 1758 was the last year of his life. He was born in Mountain Scenery in a British. He was a British poet, and one such was a John Dyer. He was a Welshman and who tried law and painting before finally taking orders. एंड ये एक माइनर था, एक पोएट था इस दौर का। और उसने एक वर्क लिखा था जिसको हम ग्रोनर ग्रोनर हील्स ग्रोनर हील्स 17 इसमें लिखा था। और ये भी एट द सेम टाइम जब थॉमस ने विंटर के बारे में 1726 में लिखा था इस रिमार्केबल। ये एक रिमार्केबल द फॉर इट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचुरल सीनरी। तो ये पोएम जो था नेचुरल सीनरी के लिए बहुत ही बेहतरीन पोएम कंसीडर किया जा रहा था। नेचुरल सीनरी इसके लिए ये माना जा रहा था। और क्योंकि इसमें नेचुरल जो डिस्क्रिप्शंस थी वो बहुत ही खूबसूरत दी गई थी। एंड गॉर्नर हिल्स ऑन द रिवर, इस तरह से कुछ वेल्स मैग्निफिकेंट व्यूज उसने डिस्क्राइब किए थे इसी शॉर्ट पोएम में। जो ये पोएम तकरीबन 200 लाइंस में लिखी थी। 200 लाइंस में ये पोएम्स इसने लिखी थी। और यहाँ तक कि उसने उसका जो जेन्युइन जो पोएटिक फीलिंग थी फॉर द नेचर, तो ये सारी चीज़ें उसको इसमें डिपिक्ट किया था। और इसको लिखा गया था ऑक्टासिलेबिक कपलेट में, जिस तरह से मिल्टन ने एल्पेंसेरोसो जो लिखा था उसी में। और जो बिल्कुल बिल्कुल शार्पली अच्छी अंदाज में उसने अपनी जो फीलिंग थी वो कन्वे थी। एंड इट इज़ सरप्राइजिंग दैट the Sainsbury find its rhyme uncertain and its grammar diffuse. It is a little gem. So इसके बाद उसकी जो बाकी जो poems थे, the ruins of the Rome, जो दूसरा जो poem था, this was the first one. The second one, the ruins of the ruins of the Rome, and the ruins of the Rome, and उसका एक और था the feast द फ्लीस। तो ये पोएम था ऑन द शिप्स एंड द वूल ट्रेडर आर नॉट। ये बिल्कुल भी हम नहीं ये ऐसे तो नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, लेकिन बोरिंग टाइप भी नहीं थे। और इसमें लेकिन फिर बाद में दे हैव लॉस्ट देयर अपील बिकॉज ऑफ देयर सब्जेक्ट। एंड इफ ही हैड रिटन ओनली दीज ही वुड हैव बीन forgotten like so many other versifier of the 18th centuries who thought that any subject was good enough if it was the only dressed in so-called poetic diction. Many of the inferior imitators of Pope, as well as others who wrote differently but with indifferent poetic sensibility, are buried in the pages. So उनके pages में इस तरह से बहुत से फिर writers थे। So it is useless to name all such writers whose work are not even considered to be the work of the poetry, is not even considered to be the work of the literature. Or we do not want to remember, and neither the history want to keep the record of them because of their subject matters. The things they are including, the things they included in their work. तो इस तरह से जॉनसन्स लाइव्स जो थे उसमें उसने बहुत सारी चीज इस तरह के जो है राइटर्स थे, he talks about the next one. We have the poet, we have a William Shan William Shenstone was another poet. William Shenstone was another poet, and he was born in 1714 and 63. So this was his lifespan. He was an Oxford scholar and most of his life of less than 50 years on his country estate.
and was more famous in his in his century, in this 18th century, for the ornamental landscape, gardening, fancy agricultures, than for the poetry. And he had a poetic ambitions and had not a little of the real poet in him, कुछ ऐसा खास real poet नहीं था, but his devotion to the muse was rather half-hearted, distracted, and he was by pursuit of other hobbies, which wasted his more modest fortune and darkened his later days. So he attempted many things like elegies, odes, songs, humorous pieces, etc. But it is remembered now by the descriptive sketches, the school. इसको इसकी जो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ जो sketches जो उसने लिखे थे, the school, the school mistress, ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेस उसने लिखे थे, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस थे इसके। डिस्क्रिप्टिव स्केच उसने बनाए थे 1742 में। एंड द चार्मिंग शॉर्ट पोएम्स, जो एक चार्मिंग पॉइंट था, रिटन एट इन इन एट हैनले एंड द स्कूल मिस्ट्रेस, ये उसने इमिटेशंस की थी। ये जो स्कूल मिस्ट्रेस थी, इट वाज एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर एंड इज रिटन इन हिज स्टैंजा। स्पेंसर के ही स्टैंजा में उसने ये काम लिखा था। सो द पोएम इन पार्ट एट लीस्ट गिव्स द impression of burlesque of Spenser. It is artificial, no doubt, and full of sentimentality, and it is far cry from Goldsmith's picture of the village schoolmaster. The so हम ये कह सकते हैं कि इसी दौर में इसको इन राइटर्स को हम कंसिडर कर सकते हैं, बट दे वर नॉट एज फेमस एज द रेस्ट ऑफ द पोएम। उसके बाद जो फिर एक और पोइट आता है, उसको हम उसके नाम से जानते हैं, विलियम 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 कॉलिंस। और विलियम कॉलिंस जो था 1721 से लेकर 1509 तक तो इसका लाइफ स्पेन था। ये भी, इसने भी अपनी तालीम ऑक्सफोर्ड में हासिल की थी, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी को अचानक से छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी अपनी मेंटल, उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, वो डिस्टर्ब था। और ड्यूरिंग अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज शॉर्ट लाइफ ही वाज इनसेन, वो पागल भी रहा था। एंड ही वाज फुल ऑफ एम्बिशियस स्कीम्स, बट लेट फर्मनेस उसमें, वो कहते हैं ना कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी उसमें, डिटर्मिनेशन नहीं थी, उसमें उसका एक जो खास जो पर्पस था, या फिर उसके लिए पर्पस के लिए जो इंडस्ट्रीज की ज़रूरत होती है, वो उसमें इतनी ज़्यादा नहीं थी। सो इन दिस रिस्पेक्ट ही रिजेंबल्स कॉलरिज। ही इज़ फेमस फॉर हिज ऑड्स, अपने ऑड्स के लिए मशहूर था, जो उसने लिखे थे डिफरेंट लिरिकल मेजर्स में। और डायरिच इन इसका जो फर्स्ट वर्ड था वो था डायरिच। डायरिच इन Siberian. He was and the pretty, the pretty, thou a little teen elegy on the poetic, teen elegy on the poet थॉमसन के बारे में उसने लिखा था। बाकी वर्ड्स में जो हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उसमें वर्ड्स में आते हमारे पास एक था द पैशन, द पेशेंस, और तीसरा जो था हमारे पास इवनिंग, पैशन, इवनिंग। तो ये सारे वर्ड्स उसने लिखे थे। एंड द सुपरस्टिशियस ऑफ द हाईलैंड, द सुपरस्टिशंस ऑफ द हाईलैंड, द सुपरस्टिशंस ऑफ हाई लैंड्स, ये था सुपरस्टिशन ऑफ द हाई लैंड। एंड द बेस्ट ऑफ देम, हाउ स्लीप द ब्रेव, हाउ स्लीप द ब्रेव, हाउ स्लीप द ब्रेव। तो ये सबसे ज़्यादा अहम था।
लिरिकल पावर्स थे कॉलिंस में, और ये कंफर्म था, और ये उसके और से ही कंफर्म हो रहा था, और इसलिए टू कॉल हिम द ग्रेटेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, तो ये ठीक होगा, लेकिन अगर हम बेहतरीन कहेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट कहेंगे, मतलब वो अच्छा ही था, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट कहेंगे तो ये एग्जेजरेशन होगी, क्योंकि उसकी फीलिंग्स ऑफ नेचर हैज अ लिटिल इंटेंसिटी, and even a graver fault is too obvious artificiality resulting from over refinement. उसमें बहुत ज़्यादा over refinement थी उसके वर्क में. The artificiality in Thomas and Gray can be ignored, but for the tide of their poetry carries everything before it. So इस तरह से हम इनको कवर अप सम अप करते हैं, लेकिन इसी इसी के साथ जो सबसे जो अहम जो एक पॉइंट है जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम कहते हैं थॉमस ग्रे. थॉमस ग्रे वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट in this list. Thomas Gray. Thomas Gray was born in 1716 or 1771. में उसकी डेथ हुई थी. So to begin, the best known poem in English language, a poem full of the gentle melancholy which marks all early romantic poetry. It should be read entire as a perfect model of its kind. Not even Milton's Il Penseroso, which strongly suggests excel in its beauty and suggestiveness. तो लाइफ ऑफ ग्रे जो है इसको हम डिस्कस करेंगे. वो लाइफ ऑफ ग्रे जो था उसकी जो रिपीटेशंस थी वो हैज़ अ मोर सॉलिड फाउंडेशन. उसकी सॉलिड फाउंडेशन ये सी थी कि थॉमस ग्रे जो था वो सन ऑफ अ बिजनेसमैन ऑफ अ लंदन था. उसने एजुकेशन हासिल की थी. ही गॉट हिज एजुकेशन इन एटन एंड कैम्ब्रिज. उसने एंड कैम्ब्रिज उसने एटन एंड कैम्ब्रिज से अपनी एजुकेशन उसने मुकम्मल की थी. लेकिन यह जो पोइट की जो मेलनकॉली थी उसके बारे में कहा जाता है टू हैव बीन ड्यू टू हिज मदर्स सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड, कि उसकी माँ अपने शोहर से जुदा हुई थी बिकॉज ऑफ हिज वायलेंट एंड हार्श टेम्पर. उसके बाप का जो टेम्पर था वो बहुत ही ज़्यादा हार्श था. इस वजह से उसकी माँ और उनके बाप की दरमियान सेपरेशन हुई थी, जिसकी वजह से उसका माइंड जो था वो बहुत ही अफेक्ट हुआ था, उसकी लाइफ अफेक्ट हुई थी. एंड ही हैड सम इंडिपेंडेंट मीन्स एंड lived in a later ease at in the university for the most of his life. सो अपने दौर पर वो जी रहा था यूनिवर्सिटी में. और इंटरेस्टिंग कहानी उसके बारे में एक ये भी है कि एक फॉल्स अलार्म ऑफ फायर बजा था, जो एक प्रैक्टिकल जॉब था जिसको किया गया था कुछ अंडर ग्रेजुएट्स ने, और जिसकी वजह से मेड हिम शिफ्ट फ्रॉम द पीटर हाउस ऑफ टू पैम्ब्रोक. वहाँ से उसको जाना भी पड़ा और पैम्ब्रोक वो शिफ्ट हुआ था. और लेकिन ही वॉज अ वेल वर्स्ड इन द क्लासिक स्पेशली इन ग्रीक. वो क्लासिक में थॉमस ग्रे जो था वो क्लासिक में एंड स्पेशली स्पेशली ग्रीक में ही वॉज अ मास्टर. ही वॉज अ वेल वर्स्ड मैन. एंड उसके तमाम वर्क में एक वर्क इज इंस्टिंक्ट विद द ग्रीक स्पिरिट. ही वाज आल्सो कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ द डे इन मॉडर्न यूरोपियन लिटरेचर. His letters are among the best in the language. He declined the poet laureateship after the death of the Cyber and was appointed the professor of history at Cambridge later in his life. तो द टोटल बल्क ऑफ हिज पोइट्री, उसने जितनी जितनी ज़्यादा पोइट्री उसने लिखी थी वो द टोटल बल्क ऑफ हिज पोइट्री उसको बहुत ही कम माना जाता है. बट इट इज़ फर्स्ट रेट एंड यूनिक. वो क्या है, उसकी पोइट्री जो है वो तो कम थी, लेकिन फर्स्ट रेट और यूनिक उसको तस्वूर किया जाता है. और उसमें इट हैज द इम्प्रेस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी. उसकी पोइट्री में स्ट्रॉन्ग उसकी पोइट्री में स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी
स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी थी एज द ऑथर ऑफ द एलिजी, क्योंकि ये ऑथर था, उसने एक एलिजी लिखी थी जो सबसे ज़्यादा फेमस थी। एलिजी रिटर्न, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है इस एलिजी के बारे में। एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ये एलर्जी, और इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था। क्योंकि ही हैज़ इंडियर्ड हिमसेल्फ टू द मिलियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक जनरल वुल्फ था, वो उसके बारे में कहता है कि रिमार्क के यू नो टू हैव द रिमार्क ऑन हिज death bed that he would rather be the author of the elegy than the conqueror of the Quebec। कि जिस तरह से जो क्यूबिक का जो चीज़ें उसने डिस्क्राइब की थी, वो कह रहा था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एलिजी का एक ऑथर है, रादर कह रहा था कि उसने जिसका बारे में लिख रहा था, जिस चीज़ को उसने पोर्ट्रे किया था, इसके बारे में उसका ये ख्याल था कि इस चीज़ को उसने फतह किया है। एक और था पालग्रेव, और उसने भी who would have excluded the elegy from his golden treasury on the account its length had to make an exception in its favor on the insistence of the Tennysons। डॉक्टर जॉनसन्स भी क्रिटिकली हॉस्टैलिटी की वजह से ग्रे के बारे में कहता है कि ग्रे वाज unreasonable as that to the Milton, yet even he could not withhold praise from the elegy। थॉमस डॉक्टर जॉनसन थॉमस ग्रे को तो क्रिटिसाइज करता है, लेकिन उसकी एलिजी को एलिजी को वो प्रेस करता है, और उसके बारे में कहता है, he says जो डॉक्टर जॉनसन abound with images which finds a mirror in every mind and with the sentiment to which every bosom returns an echo। सो इस पोएम की जो सेटिंग है, द ट्रूथ थी या सिंसेरिटी थी सेंटिमेंट्स की, इट्स क्लासिकल जो रिस्ट्रेंट था, चॉइस थी या सिंपल डिक्शन था, या इसकी जो म्यूजिक ऑफ द एलिजिक कोट्रेंस थी, ये सारी चीज़ें आर हारमोनियसली combined to produce a symphony, then the strike a sympathetic chord in every human in every human heart। so ये जो melancholy थी, इट इज़ द रिफ्लेक्शंस। और एलजी के अलावा एलजी जो था, ये उसका एक खास बेहतरीन किस्म का एक पोइम था, जिसको अभी तक लिटरेचर में बहुत ही खूबसूरत उसको समझा जाता है, क्योंकि ये एलजी जो उसने लिखी थी, ये मोस्ट परफेक्ट पोइम थी उस एज की, और इस बिलोंग्स टू दिस पीरियड। और जिस तरह से हमने मिल्टन के काम को देखा बिगिनिंग में, और फिर उसके परफेक्शन को देखा, तो इस तरह से जो लिटरेचर ऑफ मेलनकली है, विच लार्जली occupied English poet for more than a century, the two other well-known poems of this second period are the Pandaric Odes। तो इसने एलिजी के अलावा थॉमस ग्रे ने बाकी जो चीज़ें लिखी थी, जो फिनिश की थी, उसमें एक पेंडारी कोर्ट में 1742 में उसने 1742 में उसने इसको फिनिश किया था। 1750 में ग्रे का जो पोलिटिकल वर्क था, जिसमें उसके कुछ ओड्स शामिल थे, उस ओड्स में उसका एक ओड था ऑन स्प्रिंग, ऑन स्प्रिंग, ऑन on a distant prospect of Eton College, on adversity, on adversity, on the death
of a favorite cat, जो उसने अपने फ्रेंड वॉलपॉल्स के लिए लिखी थी। इसके अलावा जो दो पिंडारी कोड उसने लिखे थे, मस्ट बी रिमेम्बर टू पिंडारी कोड्स, ये उसने लिखे थे। और इसमें से द प्रोग्रेस, एक का नाम था द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी एंड दूसरे का नाम था द बर्ड। ही उसकी जो स्टडीज थी आइसलैंडिक में और केल्टिक लैंग्वेज की रिजल्टेड इन टू इमिटेटिव पोएम्स। उसकी टू इमिटेटिव्स पोएम्स उसने लिखे थे, टू इमिटेटिव्स पोएम्स उसने लिखे थे मजीद। उन टू इमिटेटिव पोएम्स में कौन से थे जो उसने केल्टिक लैंग्वेज में लिखे थे? द फैटल सिस्टर, द फैटल sisters, the fatal sisters, the descent of Odin, ये लिखा था। एंड ये एक्चुअली अनडाउटेड फॉर रनर ऑफ द रोमांटिसिस्ट। सो द फेमिलियर, इसमें एक कोटेशन थी, वेयर ignorance is bliss, it is a folly to be wise, it is the last line of this eaten ode। और ये ओड जो थी, द ओड, इसमें सबसे फेवरेट कैट, मतलब जो सबसे फेवरेट वन थी वो ये कैट के बारे में वो ये दिखाती है, शो दैट द melancholy grey was not devoid of the humor। तो ये सारी चीज़ें बर्ड जो था, but the most famous as well as the most finished of the odes are the Pindaric ode, the progress of the poesy, and the bird, and they were their regular patrons, and varied music are the best Pindaric odes in English poetry। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो थॉमस ग्रे था, थॉमस ग्रे पोइट्री कम थी वॉल्यूम में लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी की थी। और उसके जो एकेडमिक जो एक स्टार्टेड था बाय उस मैथ्यू आर्नल्ड के मुताबिक, ग्रे जो था नेवर स्पोक आउट बिकॉज ही वाज बोर्न इन एज ऑफ प्रोज may be chased by those fond of speculative criticism। What is pertinent is the quality of what he did produce, and this has never been disputed by any competent and impractical critic। So, Gray जो था was a poet of his time, and either of prevailing fashion, and either would not or could not shake himself entirely free from the shackles of the prevailing fashion, but he was discontented with its clear. He avoided the couplet altogether in favor of lyrical measure, and that he was romantic in feeling is equally clear. He expressed it with the classic restraint. It is the combination of romantic feeling and classic restraint that gives to his poetry its unique character. So Gray was a very painstaking artist. Everything he has written has elegance, conciseness, clarity, artistic finish that place him in the front rank of the English poet। एंड तो इस तरह से हम इसको एक बेहतरीन पॉइंट उस दौर का समझते हैं। अब थॉमस ग्रे को, थॉमस ग्रे एज आई सेड दिस कि उसने उसका फादर जो था वो एक उसकी माँ से सेपरेट हुआ था और इसका उस पर बहुत ज़्यादा असर आया था। उसने कैम्ब्रिज से पढ़ाई हासिल की थी, लेकिन उसका जो स्कॉलरली जो टेस्ट था, वो उसका जो स्कॉलरली में टेस्ट था ज़्यादा दिन द करिकुलम, और वो ही वाज शॉक्ड लाइक कि वो जो वहाँ पर पूरे करिकुलम को वो एमलेस समझता था यूनिवर्सिटी लाइफ को। सो इस तरह से उसके अपनी पर्सनल लाइफ में जो थी चीज़ें वो भी इतनी ख़ास नहीं चल रही थी। सो इस तरह से एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड द न्यू रोमांटिक स्कूल कैन बी इमेजिन दैट विच इज़। अब यहाँ पर हम पोइट्री को डिस्कस कर रहे हैं तो ज़्यादातर पोइट्री जो है वो फिर आगे जो दौर है वो रोमांटिक एज का है। इसके इस दौर में जो हम इस दौर का फोकस क्या होगा, रोज पर होगा, जो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
तो इसी दौर का जो फोकस था जिसमें एडिसन था, स्विफ्ट था, डैनियल डेफो वगैरह सब कुछ जो थे, इट वाज कंसीडर्ड टू बी द एज ऑफ द प्रोज। तो पोइट्स के लिए बहुत मुश्किल था इस दौर में नाम कमाना या अपने लिए कुछ करना। तो इस तरह, लेकिन फिर भी थॉमस ग्रे ने जो काम किया था वो एक रिमार्केबल था और एक लाइफ, फुल ऑफ लाइफ एक वर्क था जिसको अप्रिशिएट किया जाता है ग्रेटली। थैंक यू सो मच।